علمین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جمعیت الوداع کس موقع پہ یہ آز شہر گام لکچن بجن مسجدن سان خانقاہن تو درگاہن مز لوکو طرف نماز جمعہ ادا کرنا آو تت سپز ساروی کھت بڑ تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بلس مز یہ وادی تو خطہ چناب پہ آمتن لوکن ہند بڑ تعدادن شرکت کرت نماز جمعہ ادا کور ات موقع پہ یہ عقیدت مند آوزری کران نظر گھان تت علماء طرف ات موقع پہ شہر المساوات فضیلت بیان کران مسلمان پہ زور دن آمت تم گھن شب قدر تو عید مد نظر تھوت صدقات عطیات زکات وقتس پہ ادا کریں یت زن مستحق لوک تہ عیز ہزن خوشین مز شامل سپدن جمعیت الوداع کے موقع پہ علماء طرف مسلمان تو خاص کر نوجوان پہ زور دن آمت تم گھن قرآن حدیث تحت زندگی گزارن یت زن سماجس مز پید سپزمت برائی ختم کرنس مز آسانی سپد تو اخ پائیدار سماج تیار کرنس گوڑ برنی مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم یہ پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ درگاہ حضرت بلس مز جمعیت الوداع کس موقع پہ ذرائع ابلاغ ست کت کران ونمت یم برائی سماجس مز پید سپزمز تم سٹھائی تشویشناک تو والدین پز ات کن خاص زون دن السلام علیکم ورحمۃ دیکھیے بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان شریف اختتام پذیر ہو رہا ہے اور مولوی صاحب نے اچھی دعا کی ہے اور لوگوں کو ہدایت بھی کی ہے کہ جو خرابیاں ہماری وطن میں ہو رہی ہیں ان خرابیوں کے بارے میں کہا کہ کس طرح سے ان سے نجات مل سکتی ہے۔ ماں باپ کو خیال رکھنا پڑے گا اپنے بچوں کا، موبائل جو ہے وہ کتنی بربادی لا رہا ہے اور ہم نشے والی چیزوں میں ملوث ہیں، ان کے خلاف انہوں نے بیان کیا ہے اور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مشکل سے نکالے جس میں ہم لوگ کعبہ مرگ اننت ناگس مز تہ آز لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کرت نماز جمعہ باجماعت ادا کور تت نماز ادا کرنے پتہ موئے مقدس نشاندہی تہ کرنا آمت یہ دوران عقیدت مند آہوزری کران نظر گھان یل زن جمعیت الوداع نظر تل تھوت مقامی انتظامیہ کمیٹی طرف زائرین ہند باپت معقول انتظام کرنا آمت یہ ملت کائنات کت آسین شبن تک کمرس مز یہ آخرت کھوت زیادہ تھز نعمت اخیم فی الدنیا والآخرہ ژٕ مے بو عالمس ین چون ین حد اللہ صلی اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور وقف انتظامیہ نے وقف بورڈ کے جو ہمیں آرڈرز ملے انہی کی بدولت سے یہاں پر جو انتظامات ہوئے اور لوکل کمیٹی جو یہاں پر کام کر رہی ہے انہوں نے بہت خوش حاصلی کے ساتھ یہاں پر جو کام کیا۔ یہاں جو پالیتھین کی کمیٹی وہ بھی انہوں نے لائے اپنے جیب سے پیسے دے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے متعلق نے بھی اس کا ساتھ بھرپور تعاون دے دیا ہے۔
कि हमारे साथ जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आज ज़ायरीन आए हैं आशिकान रसूल यहाँ से फैज़ कर सर मान मैडम जी पूरे इंतजाम गई काबा मार्गस मज वनकन वो तुम पान तो ब्रो कन ये इंतजाम वर्ल्डस मज इंतजाम क्या जमतुल विदा किस मौके पे ये वादी मज बड़ बड़ इज्तिमा सपद तथ अजीम दोहस पे सूबाई इंतजामिया तरफ मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज नमाज जुमा अदा करनस इजाजत दिन आमुत यम किन मुसलमानन मज सठा नाराजगी वुचन येल जन जामिया मस्जिद वातन वालो लूको तरफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन आव जे किस मुनज़म साजिश तहत इंतजामिया तरफ ये कदम तुलने यम सत मुसलमानन हिंद जज्बात मजरूह सपदन येल जन उमर अब्दुल्लाहन ट्वीटर्स पे ट्वीट करान वोन ये मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ वादी मज हालात बेहतर वन तत मुसलमानन दीनी फरीज अदा करनुक तत मुसलमानन दीनी फरीज अदा करनुक इजाजत दिन यम सत सरकार दाव सराब साबित सपदान परमिशन काल दोपक परमिशन हसा मिलोमुत परमिशन मिलोमुत काल आए तवे नमाज पढ़ने योर ये गेट बंद ये अगला जाना था 4 दिन से पहले। ये औकाफ का चेयरमैन का मेहरबानी है। औकाफ की चेयरमैन जो बन गई ना यहाँ उनका मेहरबानी है, लोगों को परेशान करवाता है। जो चेयरमैन बन गया, चेयरमैन लेडीज बन गया, उसकी मेहरबानी यहाँ लोगों को परेशान करवाया। हम सब जानते हैं इधर ये मुसलमानों के लिए बड़ा मुसीबत है। और 4 दिन से पहले अगला जाना था। बोला रात खबर औकाफ का चेयरमैन है ना, उसी ने बर्बादी की है सब कुछ। लेडीज रखा है नमाज पढ़ने है, पूरा साल का लिए बड़ा दिन है, वही है, उसी ने बर्बादी की है सब कुछ। सब बर्बादी उसी ने की है। बर्बादी उसे नमाज पढ़नी है और क्या ये नमाज पढ़ने नहीं देंगे? बड़ा मुसीबत है। और क्या करेंगे? बड़ी बुरी कश्मीर को हर तरफ की तरह की परेशानी है। क्या करेंगे? हम भी 20-40 किलोमीटर पढ़ कर यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए। यहाँ बोलते नमाज नहीं है। ये बंद कर दीजिए भाई। यहाँ हमारा क्या बात है? ये क्यों बार बार बंद किया जाता है? हमारा आखिर क्या कसूर है कश्मीरियों का? हमारी कश्मीरियों का क्या कसूर है? क्यों बंद किया जा रहा है? हम सुबह 9 बजे से घूम रहे हैं इधर से। भाई नमाज पढ़ी, गेट खुल जाएगा, हम नमाज जाएंगे। हमारा क्या है? हम नमाज पढ़ रहे। हम क्या किससे अपील करेंगे भाई? किससे अपील करेंगे? हम अपील तो आप लोग करेंगे, आप बड़े लोग हैं, आप करोगे। हम क्या अपील करेंगे? हम नमाज पढ़ने आए, सीधे साधे लोग हैं, हम जाने नहीं देते कोई अंदर। ये आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या? हमें बताइए आखिर क्या बात है? हमारा हम लोगों का क्या कसूर है? ये पहुंचा दीजिए, ये बात कहीं पहुंचा दीजिए ये बात। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन अमे हवाले कत करान वोनमुत ये अकि तरफ वादी हिंद हालात बेहतर आसनिक बड़ दाव कर तत दोयमि तरफ जामिया मस्जिद मज नमाज अदा करनुक इजाजत दिन यस जन अफसोसनाक फैसले छु। जी मुझे अफसोस है इस बात का, तो अगर हालात ठीक हैं तो जामा मस्जिद में क्यों नहीं नमाज हुई? और बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि आज तक इतने सालों मौलाना साहब को भी अभी तक भी उमर फारूक साहब को बंद रखा है घर में। वक्त आ गया है कि जब हालात अच्छे हैं उनको छोड़ना चाहिए कि वो नमाज पढ़ सकें, लोगों को खुतबा दे सकें, लोगों को हिदायत कर सकें, जो ज़रूरी है। क्योंकि आज जो हालात हैं उनमें हम लोग अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह के रास्ते को छोड़ गए हैं। और उस रास्ते पे लाने के लिए ज़रूरी है कि वो आएँ, वो भी लोगों के सामने खिताब कर सकें और हम लोगों के लिए दुआ कर सकें कि हम लोग ठीक रास्ते पे चल सकें। किबले अवल मस्जिद अक्सा आज़ादी हिंद बापत द्राय आज द्रुस वादी मज कईहन जायन पे यौमुल कुद्स के एहतमाम जुलूस यमन मज लूकन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। जिला बडगमिस मज अंजुमन शरी शियांग के एहतमाम अमे हवाले पुरवकार तकरीब साज करना आमुत यमिच पेशवाई हुज्जतुल इस्लाम आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफियन कर। यपर लद्दाखस मज यौमुल कुद्स के हवाले कईहन जायन पे जलसन तकरीबन हुंद साज करना आमुत। यथ दौरान फलस्तीन च खुद मख्तरी बापत खसूसी मंग मंग करना आय। यल जन आत मौकस पे इसराइलिच मजम्मत
کران ون آو یت ماہ مقدس مز اسرائیل طرف فلسطین کن معصوم مسلمان پہ ظلم کرنے یوان. جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ روز قدس ماہ رحمت کا آخری جمعہ روز قدس کے نام سے موصوف ہے، اور اس دن ہم فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی ایکسپریس کرتے ہیں اور ان سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہرگز بھی دنیا میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. دنیا کے کونے کونے میں بسنے والا انسان جس کا یقین اسلامی تعلیمات پر ہو، ہیومن ویلیوز پر ہو، وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اسی تناظر میں مجمع شریشیان حسب روایت حسب امر قدیمی تمام زیر نظارت جمعہ مراکز پر یوم قدس کے جلوس اور ریلیوں کا انعقاد کرتی ہے، اور وہاں سے بھی یہی میسیج ان مظلوموں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ ہرگز بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. حقیقی ہم پرزور الفاظ میں اپنے قائد کی طرف سے بھی اور تنظیم کی طرف سے بھی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. انتظامیہ بالکل بھی کچھ چیزوں کے لیے حساس نہیں ہے، جیسے کہ آپ خود جانتے ہیں. آسا شریف مقامس مز آز نماز جمعہ ادا کرنس مز لوکن ہند بڑی تعداد شرکت کر. تت کاروان اسلامی سربراہ مولانا غلام رسول حامین ات موقع پہ ماہ رمضان فضیلت بیان کران لوکن پہ زور دتمت تم گھن یت بابرکت رتس من زیادہ کھت زیادہ عبادت کرنس ترجیح دین. یل زن نوجوان پہ زور دن آو تم گھن دین زندگی مز شامل کرت زندگی گزارن یت زن تم دنیا تو آخرتس مز کامیاب سپدن. درز برصغیر سان آواز وادی مز بیساکھی ہند تہوار مذہبی عقیدت جوش جذبہ سان مناونہ یتھ دوران آج صبح پہ وادی ہندین گردوارن مز وسدرس وچھنس یوان. وادی مز یت ساروی کھت بڑ تقریب چھٹی پادشاہی رونور سرینگرس مز سپز یت وادی پہ آمتو سکھ فرقس ست وابستہ لوکو شرکت کر. تت ات موقع پہ کیرتن تو لنگرک تہ اہتمام کرنا آمد. یل زن ذمہ دارو طرف ون آو ز أکس خاص موقع پہ جموں کشیر ہند امن امان باپت تہ خاص منگ منگ کرنا آمد. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. आज खालसा सायना दिवस बैसाखी का दिन है. आज के दिन सन 1699
कि बैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जो सिख धर्म के 10वें गुरु हुए हैं, अनंतपुर साहिब केसगढ़ के स्थान पर पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खालसा पंथ की साजना की थी। आज के दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी इकट्ठ में 5 सिरों की मांग की थी। तो उसमें भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह वो सामने उतरे से। तो गुरु साहब जी ने उनको अमृत छकाया, फिर उनसे आप अमृत छका था। तो ये आज उन्होंने हमारा एक 5 ककार जैसे हम बोलते हैं, केस, कड़ा, कंगा, कछहरा, किरपान, ये 5 ककार हमें दिए। तो उन 5 ककारों की बहुत बड़ी विशेषता है, रिस्पेक्ट है। केस जो है हम इसको गुरु की मोहर मानते हैं, स्टैम्प मानते हैं। तो सिखों ने अपने केसों की रखवाली के लिए, क्योंकि ये अजमत की निशानी है, इज़्ज़त की निशानी है, उसके लिए कुर्बानियाँ दे दी। इसलिए दूसरा हमारा जो ककार है, कंगा है, कंगा हमें ये दिखाता है, ये मैसेज देता है कि हमने संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए, हम अच्छे कामों के लिए, उनकी भलाई के लिए हमेशा तैयार बर तैयार रहना है, जज्बे से काम करना है, ताकि जो दुनिया के अंदर जो अमन अमान का माहौल बना रहे और जो ऐसी चीज़ें जिससे वर्ल्ड लेवल में बुराइयां फैलती हैं उनसे उनको पाक कर सकें। फिर हमारा कड़ा है, ये मैसेज करता है कि सिख ने किसी भी ओहदे पर रह के या किसी भी काम में रह के कोई गलत काम नहीं करना है, तो नए गलत काम को संसार में, दुनिया में फैलाना है। तो जब भी हमारा हाथ आगे आता है, गुरु गोबिंद सिंह का ये कड़ा हमें याद दिलाता है कि हमने गुरु गोबिंद सिंह के उस मैसेज को दुनिया तक लेना है। तीसरा जो है फिर हमारा ककार, वो हमारा कछहरा आता है, जो अंडरवेयर, जिसको सिख अंडरवेयर कहा जाता है, सिखी कछहरा कहा जाता है। यह हमारे अजमत की, ऊंचे करैक्टर की एक निशानी है। सिख ने जो हमेशा दूसरों की, बहू बेटियों की रक्षा करनी है और ऊंचे करैक्टर वाला रहना है। फिर हमारी कृपान है, कृपान हमारी आज़ाद हस्ती को प्रकट करती है कि सिख जो है उसका रिश्ता गुरु के साथ है, अकाल पुरख के साथ है। हम किसी और के सामने जो है अपना शीश झुकाना पसंद नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर मज अजकि अकिस हफ्तस तम जारी रोजन वाली जानकारी हफ्त शुरुआत सपज तब आज मुख्तलिफ जायन पे फायर सर्विस महकम तरफ तकरीबन साज कर आमुत यथ दौरान ड्यूटी दौरान जाँ बहक सपदमत फायर सर्विस एहलकार खराज पेश करना आव। यपर सोपरस मज आज फायर सर्विस महकम तरफ अमे हवाले तकरीब साज कर आमुत यथ मज मारिज सपदमत एहलकार खराज पेश करना आव। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज पूरा हफ्तस दौरान यी लूकन जान फराम करने युद्ध जन नार वारदातन पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। यल जन लूकन अपील करने आई ज तिम गचन फायर सर्विस महकमस पूर पट अथवास करें। एक्चुअली जो आज 14 अप्रैल 1944 को जो हादसा हुआ था बम्बई डॉकयार्ड में एक जहाज, जिसमें फायर फाइटिंग के दौरान हमारे 66 जवान शहीद हुए थे, और उनके साथ साथ आज तक जो रियासत जम्मू कश्मीर में फायर सर्विस के जवान शहीद हुए फायर फाइटिंग के दौरान, उनकी याद में हमें 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक अवेयरनेस वीक मनाते हैं, जिसका इनेकाद आज हुआ था और आज हमने उनको खराज तहसीन पेश किया। और ये हफ्ता जो है रियासती सरकार और भारत सरकार ने इसको इस हैसियत से बनाने का प्रोग्राम रखा है ताकि इस हफ्ते हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, ताकि हमें जो आग के हादसात हैं वो कम हो जाएंगे। मेरी अवाम अल्लाह से गुजारिश यही है कि आज के दिन से कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे मकान है, चाहे शॉप है, चाहे दुकान है, उसके बारे में मेरी ये गुजारिश है कि खास ख्याल रखें इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का, एलपीजी गैस हीटर्स का जो इस्तेमाल करते हैं उनका बड़ा केयर करें ताकि हादसात कम हो जाएंगे। ये मेरी गुजारिश है। और दूसरी गुजारिश है कि जिस वक्त भी हमारी टीम फायर फाइटिंग के लिए रवाना होती है, आग पर टाइमली पहुंचती है, और वहाँ पर मेरी गुजारिश ये है कि काफ़ी लोग मदद भी करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं ऑपरेशन को। इनको मालूम नहीं होता कि टेक्निकल पॉइंट क्या है। जो हम डिलीवरी होज डालते हैं उसकी कनेक्टिव मेल एंड फीमेल कनेक्ट होगा तब पानी जाएगा आगे। क्या होता है कि जब हमारे जवान जो है ना, जो लोग होते हैं वो ऐसे ही ले जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है कि फायर फाइटिंग में उसकी कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती है। उनके लिए क्या मैसेज रहे? हमारी मैसेज यही है कि आप सिर्फ गाइडेंस करें, पानी के बारे में हमें इतला दे दें, पानी कहाँ है, रास्ता दिखाएं कहाँ से रास्ता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट दिखाएं और मदद करें।
हमें मदद करें, गाइडेंस से अपनी मदद करें, लेकिन डिस्टर्ब ऑपरेशन न करें। अच्छन पुलवाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे 22 प्राइमरी स्कूल के सहनस मज बोसेद बोन कुलिस शाख तरशी करने हवाले कई फिर इंतजामिया मंग करना आई, ताहम चुना अजताम कह कदम तुलना आमद यम किन वालदेन मज तशवीश पद सपुद। लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमद जि बोन कुल शाख तरशी हवाले गसन कदम तुलने यन युद्ध जन वालदेन मज पद सपुद तशवीश दूर करने। जुमाई महमद वाव अत वारिया लंग गयस वसित बच्चे घर गमी तम सात अगर अतन मौके पे बच्चे खबर कत्या बच्चे मरिहन पत खस सह टीचरन बार या गस वन टीचरन हे बल यह तुज लापरवाही, मगर यह लापरवाही कह बूई गवर्नमेंट अगर इन आर्डर दिन हेन शाख तरशी कर हेन ठलित तिक बच्चन तक गि बिचार प्रॉब्लम कहें तिक अतन बच्चे प्रेल तलक पड़न वाव कुन सात या मौसम खराब तो अगर पे खोन या लंग वंग आव वसित तो बच्चे हे मरित अतनस तो गवर्नमेंट अत सदन हत अगर लकट मौसम बच्चे पड़न मौसम बच्चे बिचार प्राइमरी स्कूल तो अगर कंस बच्चस नुकसान वात सह गि मुश्किल तो गवर्नमेंट पता यह अत शाख तरशी कर अगर चटिहन से जान गयो थी अगर तो तोत शाख तरशी गई। हमारे स्कूल ग्राउंड में जो ये चिनार है इसका ऊपरी हिस्सा पिछले 2-3 सालों से सूखने लगा। अब जब ये शाखें ज़्यादा सूखी तो ये कोई जानवर बैठता है तो नीचे गिर जाती है, या हवा का झोंका आता है तो ये शाखें नीचे गिरती हैं। अगर ये मासूम बच्चे इसके नीचे हों तो ऊपर से शाख गिरे तो बच्चे ज़ख्मी होने का कभी इम्कान है। 2-3 बार ऐसा हुआ, लेकिन किस्मत ने साथ दिया कि उस वक़्त हमारे बच्चे इसके नीचे नहीं थे। छोटे बच्चे हैं कि ग्राउंड थोड़ा ही है, लिहाजा ये घूमेंगे फिरेंगे, तो अचानक अगर सूखी शाख गिर गई तो इससे जानी नुकसान का ख़तरा है। हमने हुकूमत से ये ऊपरी हिस्सा सूखी शाखें काटने के लिए पूरी तरह गुजारिश की। पटवारी मुतलिका पटवारी, तहसीलदार गिरदवार, नायब तहसीलदार और तहसीलदार शाहूरा की वसात से हमने केस AC ऑफिस तक पहुंचाया, लेकिन पिछले जून 2022 से केस चल रहा है और अभी भी हमें ये की शाखें काटने का हुक्म नहीं मिल। अम्बेडकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन डोडा तरफ आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सदिस जादोस हवाले तकरीब सांझ करना आमुत यथ मज तंजीमी दो जिम्मेदारों तो कारकुनों शिरकत कर। अत मौके पे ये अम्बेडकर मुल्कस हवाले दिन आमत खदमात गशरन आये तक तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आमुत। जी मैं जोगिंदर सिंह राय हूँ। तो आज का दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती जो है डोडा में मनाई जा रही है, और डॉक्टर अम्बेडकर का जो मैसेज था वो मैसेज दुनिया में आज इक्वलिटी के डे के तौर पर पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है। और इन्होंने कहा था कि सामाजिक समरसता में हर व्यक्ति की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, और देश के अंदर जितने भी गैर बराबरी का कानून था 26 जनवरी 1950 से पहले उन्होंने ख़त्म किया, और उसके बाद जो उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित समाज की रचना करने की कोशिश की, और सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी कायम करने का सपना उन्होंने भारत के समक्ष रखा। और इसी सिलसिले में आज पूरे डोडा निवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब की अम्बेडकर की जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बाबा साहब का ये मैसेज था कि एजुकेट हो जाइए, आज ऑर्गेनाइज हो जाइए और एजुटेट होकर अपने संघर्षों की लड़ाई लड़िए। तो नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।